So, as usual, or it was not usual, but still, when I woke up in the morning that day, I felt like, I will not get back to college because my heart is broken and I don't know how to fix it up by myself. But still, I was just blabbering in the beginning to start a day to just feel like, I have to get back to real life. I have to attend the college because only 1 year is left and my beautiful college is beautiful. And he who left me is not mine, but the moment that I can create in the moment can be mine. That's why I woke up in the morning and I was just talking, and I was only talking about him, and also the fact that maybe a news story might be published lastly during I'm doing an internship, so uh, a story might be published too out there, and that's why I was happy. And I was sad also because I was just reflecting my imperfection out there. You can see the specs, it's kind of in a dismantling state because my nose has some kind of an issue. Like, my nose is not proportionally well looking. That's why the chashma or the spectacles do not fit easily. वो लटक जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ because I know people judge you by the way you look, and at least it is in my head that I need to look beautiful. And by the way I say I need to look beautiful, it means that I need to look like a girl and not a tomboy. And I will improve myself, I know this. But then coming back to the story of that day, I woke up and I have got back to the tram. Sorry, I have gone back to catch train from Dum Dum, and you can see the people out there. I was just seeing the people and I was feeling like, one day I will be among these people too, and I will listen to the songs and XYZ, and I will not remember him at all because this is just a phase. And I'm very cringy about it. I don't know of other people, but I'm very cringy about it. Everything I am seeing around me, I am just referring this way, that he used to say this, he used to do this and all. And this happens. But this is a lesson which the metro taught me that day, that I might be making the video and just walking slowly out there, but then another opportunity out there is waiting for me. So I must grab it and just seize the moment, and I must make new memories out there, because मेट्रो की तरह ज़िंदगी एक मेट्रो से और मेट्रो पकड़ने के लिए ही बना हुआ है. चांसेस है, बहुत चांसेस है लाइफ में, लड़के भी है बहुत लाइफ में, तो मुझे एक के साथ ही क्यों रहना है, कोई और आ जाएगा. ये खुला, मतलब ये जो दिल है, ये कभी खुलेगा, ये कभी टूटेगा, ये कभी बिखरेगा, बट देन आई विल फिक्स इट अप, बिकॉज it's my job to be able to respect myself. And at least down the line while walking on the road also, I was trying to just answer myself the same thing, that why I was unable to respect myself. Like, he left you, he had said this, that we are not meant for each other, we are not a good match, XYZ. But still I was not able to get it, that this is the end. Like, why I can't respect myself, whether it is because I'm afraid of losing the moments that I spent with him ओवर फ़ोन कॉल्स ओनली. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, फ़ोन कॉल्स में ही बात किया था, पर फिर भी वो अच्छे थे. तो क्या मुझे वो अच्छे मोमेंट्स को याद करके रखना है, पकड़ के रखा है, इसीलिए मैं ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ? या इस ट्राम लाइन की तरह, लाइक अभी तो ट्राम लाइन में ट्राम आना भी बंद हो चुका है, पर मैं उसको मतलब जैसे वही है, जैसे ये देख रहे हो ना, इसके ट्राम लाइन में यहाँ पे कोई ट्राम नहीं आता है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में अभी हो रहा है कि मैं जितना भी फील कर लूँ उसके लिए, वो नहीं आएगा मेरे पास एक प्यार बन के. मुझे पता है, पर मैं फिर भी कोशिश करी जा रही हूँ उसको याद करने में. बट मैं रास्ते में जब होती हूँ ना, तब मैं बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती हूँ. और अभी बेसिकली विंटर आ गया है, ठंडा ठंडा हो गया है, तो जस्ट MG रोड से कॉलेज स्ट्रीट तक जब वॉक किया ना, तो इट वाज अमेजिंग. मतलब डरी सी थी, बिकॉज चार्जर नहीं था और फ़ोन पे कुछ ही % चार्ज थे, बट फिर भी जितना भी चार्ज था आई थिंक स्टोर कर लिया द ब्यूटी ऑफ कॉलेज स्ट्रीट.
उसके बाद मैं कॉलेज स्ट्रीट में एक्चुअली गई थी, मुझे पता है क्यों गई थी, मैं बता रही हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू डू माई भालोबाशा विथ माई भाषा. आई एम गुड इन बेंगली, মানে আমি ভালো বলতে তো পারি, but I can't write proper Bengali in total way. Like I cannot do it. And now my dream suddenly is to write a screenplay in Bengali and direct a movie in the future. You know, my dream and the moment. I know ये जो सपने होते हैं ना, ये आके जाके ना चले जाते हैं, शायद ये पूरे भी नहीं होंगे, पर जो भी है तुम ये सपने देखा करो. मैं कोई सपने देखना चाहती हूँ, मुझे जीना है, मतलब मुझे हंस के खुल के अपने लिए जीना है. और अभी एटलीस्ट इस लड़के के जाने के बाद, क्योंकि ये अच्छा था तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ रहेगा, पर इसके जाने के बाद, इसके वो लेक्चर्स देने के बाद बंगाली में कि এটা অসম্ভব, यू आर नॉट माइन, सो एगुलो करने के बाद मुझे भी पता चल गया है दैट आई नीड टू डू everything for myself. I need to stay selfish, and more than being selfish, I need to just get out and do things on my own. And you can see this movement of seeing the Bengali books out there. The man is finding books for me, Shohoj Pat, and also this man didn't successfully find the other two books, Adorsho Lipi and Borno Porichai, but जो भी find किया है, he is doing great. And I really love looking at the books out there, like the vibrance and the feeling of Kolkata is there in College Street. और ये बेसिकली गर्मी में समझ नहीं आता, जब गर्मी होता है तो लगता है बाप रे, हाउ कैन आई मैनेज द रोड साइड heat and XYZ. But right now, at least I feel glad that day was really a breezy one. It was a little bit cold and I was searching the places, and I actually क्या करूँ, मतलब मैं ना कॉलेज स्ट्रीट चलते चलते ना बीच रास्ते में ऐसे उल्टे जगह पे चली गई. क्यों गई मैं बता रही हूँ, ये रास्ते में आएगा. आहिस्ते आहिस्ते मैं बेसिकली उल्टे जगह कॉलेज स्क्वायर गई. तो कॉलेज स्क्वायर से मुझे पार करना था वो रोड, बट मैं वो भूल गई, तो मैं उल्टी दिशा पे चली गई. बट वैसे भी करके मैंने अपना घर ही ढूंढ लिया. मैंने बस में उतरा एंड देन मैं कैसे भी करके मैनेज कर लिया. बट स्टिल रास्ते में जाते जाते आप कभी मत सोचना कि मेरे पास बहुत लोग हैं बात करने के लिए या मतलब शेयर करने के लिए. आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट हैव एनी ग्रेट फ्रेंड्स इन माई लाइफ. 1 या 2 लोग हैं. मैं तो ट्राई करती हूँ, बट मुझसे नहीं होता अच्छे दोस्त बनाना. वो मतलब मेकिंग फ्रेंड्स इज़ एन लाइक, दोस्त बनाना एक आर्ट है, और वो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ ना, मैं तो बेकार की ऐसे ही बातें करती हूँ. बट मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. और ये जो जगह है आप देख रहे हो, ये कॉलेज स्ट्रीट है, जहाँ पे बुक्स ही पड़ा हुआ है. तो मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ अभी दिमाग में कि मैंने तो एक बुक पढ़ना शुरू कर दिया था. ये जो लड़का था वो एक बुक था, उसका चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है, पर मैं क्यों उसको लेके बैठी हूँ यार. वो मेरा फेवरेट चैप्टर भी नहीं है, पर फिर भी उस चैप्टर के अंत होने के बाद ना काफ़ी सारे हिंदी पोइट्री या उर्दू पोइट्री कुछ लिखा है मैंने. तो मैं सोच रही हूँ, दिमाग में ऐसे बैठा रही हूँ कि मैं ये सारी हिंदी पोइट्री को एक वीडियो बनाऊँगी, उसको डालूँगी, या ये करूँगी वो करूँगी. और अभी तो मैं इतना शॉक्ड हो गई हूँ कि मैं कल के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ. जो होगा देखा जाएगा. अभी मैं आहिस्ते आहिस्ते सिर्फ अपने बारे में, अब के बारे में सोच रही हूँ. वो कल के बारे में या 600 साल बाद क्या होगा, इसका कोई घंटा फ़र्क पड़ता है. आई जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टुमारो, बिकॉज इट्स स्केरी फॉर मी. एंड द पार्ट दैट इज़ हैपनिंग विथ मी इज़ दैट नाउ आई फील very haphazard in trusting people's word, because I trusted this man's word, but ये लड़का 1 सेकंड में अपनी बातों पे मुकर गया. एंड अभी इसने मुझे एक जगह बताया कि मैं क्या तुमको फोर्स करके प्यार करूँ, तब लगा नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर मुझे दर्द हो रहा है. और जब दिल को दर्द होता है ना, उससे मतलब वो फट सा जाना चाहता है, पर वो फट नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कोई आके संभालेगा नहीं उसे. तो वो जो पेन होता है ना, वो अननोइंग काइंड ऑफ
जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट फिर भी हो रहा है, वो अनॉय फील करना एक नॉर्मल है, शायद अभी नॉर्मल है, क्योंकि अगर मैं फील अभी नहीं करूँ तो शायद ये बाद में आके मुझे अनॉय करे या हॉन्ट करे। सो अभी करना भी अच्छा है, बट मैं अभी लो नहीं हूँ, बस मैं ओके हूँ बाई डूइंग ऑल दिस। एंड यू नो क्या है, इस बार मैं जब कॉलेज स्ट्रीट में गई तब मैं अकेली गई थी मतलब हम लोग मिले थे बेसिकली एक डेट के लिए कॉलेज स्ट्रीट में ही, और उस वक्त एक्चुअली कॉलेज स्क्वायर में गए नहीं क्योंकि लाइट बंद थी, पर इस बार लाइट ओपन थी तो अच्छी तरह से मैं गई और उन बच्चों को देख रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अकेली भी जी सकती हूँ, ऐसे लो फील करना इज़ ओके। यू नो, अगर कोई चला जाए आपकी ज़िंदगी से जिसे आप बहुत प्यार करते हो, उसके लिए फीलिंग्स रखना गलत नहीं है, बस उसको जाने देना है। और वो जाने देना है, वो मेहनत करके जाने देना है, वो ऐसे ही एक दिन में नहीं होता है, पता है। बट वो मेमोरीज जो भी है पता नहीं कब ख़त्म होगा, बट होगा। और आप देख रहे हो ना, मैं जैसी भी हूँ, मैं अच्छी तरह से मैं कॉलेज स्ट्रीट गई और मुझे ये इनिशिएटिव भी लेना है कि अगर मैं उसके साथ कभी फ्यूचर में बात भी करूँ तो मैं ऐसे करूँ कि वो एक सिर्फ इंसान है, वो मेरा कोई नहीं है। और अगर मैं उस चीज़ पे पहुँच गई ना, तो मैं अपने आप को आई लव यू कहूँगी, क्योंकि मुझे खुद से प्यार करना है, अब किसी और से नहीं।